اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر حامد شافی اور آپ دیکھ رہے ہیں شافیہ سوشل میڈیا۔ آج جو میرے ہاتھ میں سوال ہے یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ اگر آپ کو اس سوال کا جواب سمجھ آ گیا، اگر تو آپ مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی خاص کرم نوازی سے آپ مسائل سے نکل جائیں گے۔ اور اگر آپ مسائل میں فی الحال پھنسے نہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو آزمائشوں سے بچایا ہوا ہے، تو تادم موت آپ بھی مسائل سے انشاءاللہ بچے رہیں گے اور آپ کی نسلیں بھی محفوظ رہیں گی، کیونکہ جو عمل آپ چھوڑ کر جائیں گے وہی آپ کی اولادیں عمل کو جاری رکھیں گی۔ تو یوں جو پریشان حال ہیں ان کو بھی نفع ہو جائے گا، اور جن کو اللہ رب العزت نے پریشانیوں سے اب تک بچایا ہوا ہے انشاءاللہ وہ مزید بھی محفوظ رہیں گے، بچے رہیں گے۔ کیونکہ بہت سی پریشانیاں ایسی ہیں، مسائل ایسے ہیں، تکلیفیں ایسی ہیں، آزمائشیں ایسی ہیں جن کو خود ہم اپنے ہاتھوں سے پیسہ دے کر خرید رہے ہیں، اور بعد میں پھر ہم جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ تو یہ ساری باتوں کے جوابات آپ کو اسی ایک سوال کے اندر مل جائیں گے۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میں کراچی سے مسز الطاف میمن بات کر رہی ہوں۔ چند دن سے آپ کے بیانات سننا شروع کیے ہیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹی اور ایک بیٹے کی منگنی کی، مگر بغیر کسی وجہ کے منگنی ٹوٹ گئی۔ یعنی 2 بچوں کی منگنی کی ہے، ایک بیٹی اور بیٹے کی، وہ بغیر کسی وجہ کے ٹوٹ گئی ہے۔ بڑی بیٹی کا نکاح کیا ہوا ہے، مگر رخصتی میں بلا وجہ لڑکے والوں کی طرف سے رکاوٹیں ہیں۔ بہت پریشان ہوں۔ ہم جہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچوں کے رشتے باندھے ہوئے ہیں۔ پچھلے 8 سال سے دن رات مختلف وظائف بھی کر رہے ہیں اور عاملین سے علاج بھی چل رہا ہے، مگر کوئی بات بنتی نظر نہیں آ رہی۔ بچے اوور ایج ہو رہے ہیں۔ پلیز ہمیں گائیڈ کریں کہ کسی طرح ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ میں خود بھی بیمار رہتی ہوں، بہت پریشان ہوں۔ پچھلے تقریباً 1.5 سال سے سورہ بقرہ بھی روزانہ پڑھ رہے ہیں، مگر حالات میں کوئی بہتری نہیں آئی، بلکہ پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں۔ سوال سمجھ آ گیا؟ دیکھیے، میں ہر دوسرے بیان کے اندر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب تک تشخیص نہیں ہوگی درست، آپ کا کبھی بھی علاج نہیں ہوگا۔ جب تشخیص ہو جاتی ہے تو کسی کی تھوڑی سی بھی رہنمائی کر دی جائے، یعنی مریض کی، تو وہ گھر بیٹھے خود علاج کر سکتا ہے۔ جب تشخیص ہی نہیں ہوگی تو چاہے آپ علاج میرے سے کروائیں یا کسی سے بھی کروائیں، میں بھی مکھی پہ مکھی ماروں گا، غلط کام کروں گا۔ اگر مریض خود جو ہے اپنا علاج کر رہا ہے تو وہ بھی غلط پڑھائی کرے گا، نفع کی بجائے نقصان ہو جائے گا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ مسز الطاف میمن کی جو فیملی ہے، یہ فیملی نہیں ہے، یہ پوری امت ہے وظائف پڑھنے والی۔ یہ مسز الطاف میمن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے۔ تو پہلے بنیادی باتیں سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ العزیز جو اس کا حل ہے وہ بھی بتا دوں گا۔ عمل آپ نے کرنا ہے، کرم اللہ نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا۔ جس گھر میں بغیر شرائط کے وظائف پڑھے جائیں گے اس گھر میں خوشیاں نہیں آ سکتی۔ کسی طرح آپ یہ بات اپنے دل میں اتار لیں، اور جب تک دل میں نہیں اترتی اس کو کاغذ پہ لکھ کر کسی ایسی نمایاں جگہ پہ لگا دیں جہاں آپ کی دن میں 1-2 بار نظر پڑتی رہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی گھڑی، کوئی لمحہ، کوئی ساعت ایسی آ جائے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آ جائے کہ جس گھر میں بغیر شرائط کے وظائف پڑھے جائیں گے ہر آنے والا دن بد سے بدتر ہوتا جائے گا۔ چاہے آپ مالی طور پہ برباد ہونا شروع ہو جائیں،
रूहानी तौर पे बर्बाद होना शुरू हो जाए, सेहत के हवाले से बर्बाद होना शुरू हो जाए, या समाजी तौर पे यानी आपकी सोशल लाइफ ख़त्म होना शुरू हो जाए, अपने पराए हो जाए, सारे दुश्मन बन जाएं वगैरह वगैरह। इसका इन्हिसार है कि आप वज़ाइफ कौन से पढ़ रहे हैं और कब से पढ़ रहे हैं और शराइत को किस हद तक पामाल कर रहे हैं। क्यों? ये बात पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, हर बंदे के साथ मुख्तलिफ मामला होता है, लेकिन जो इन तमाम बातों का नतीजा निकलता है वो है तबाही का, चाहे कारोबार की सूरत में निकले, सेहत की सूरत में निकले, सोशल लाइफ ख़त्म होने की सूरत में निकले, ठीक है, या माली तौर पे आप बिल्कुल कंगाल हो जाए वगैरह वगैरह। वो माँ बाप जो बच्चे बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, अगर तो वो ये चाहते हैं कि हमारे रिश्ते हो जाएं, हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं, तो पहला काम वो ये करें या अपने घर में झांकें, क्या हमारे घर में वज़ाइफ पढ़े जा रहे हैं, रिश्तों के लिए वज़ाइफ पढ़े जा रहे हैं। पहली बात, अगर जवाब है कि रिश्तों के लिए कोई वजीफ़ा नहीं पढ़ा जा रहा, फिर अपने घर में देखें कि कोई आपके घर में वालदा है, वालिद साहब हैं, या कोई और रिश्ता है या कोई और फ़र्द है, वो पहले से वज़ाइफ पढ़ रहा है, चाहे वो महज आखिरत के लिए पढ़ रहा है। क्या कोई आपके घर में ऐसा बंदा है? दो ही मसाइल होंगे ना। कुछ लोग हैं जिनके घरों में पहले से ही वज़ाइफ चाले, माँ बाप पढ़ रहे हैं, आगे औलादें नहीं पढ़ रही, या वो रिश्तों के लिए नहीं पढ़ रहे, महज वो आखिरत के लिए पढ़ रहे हैं। और कुछ घर ऐसे हैं कि पहले वो औरादो वज़ाइफ करने वाले नहीं थे, आमलीन के पास तवीज़ धागा करवाने वाले नहीं थे। जब उनके ऊपर मुसीबतें पड़ी, औलाद के रिश्ते ना हुए या रुकावटें आना शुरू हुई, तो किसी ने कहा ये पढ़ो, किसी ने कहा ये पढ़ो, आमिल ने कहा ये लटकाओ, दबाओ, जलाओ, पिलाओ। वो इस मैदान के खिलाड़ी नहीं थे, मगर उनको हालात इस मैदान में ले आए। तो ये दो सूरतें ही हो सकती हैं। कुछ लोग जो है वो रिश्तों के वज़ाइफ पढ़ रहे होंगे, माँ बाप भी पढ़ रहे होंगे, बच्चियाँ भी पढ़ रही होंगी या बच्चे भी पढ़ रहे होंगे। कुछ घर ऐसे होंगे कि जिन घरों में पहले से वज़ाइफ कोई कर रहा है, चाहे वो वालदा है, वालिद साहब हैं, या घर का कोई फ़र्द है। तो ये दो बातें आपने पहले अपने घर में ट्रेस करनी है कि आया इन दो में से कौन सा काम हमारे घर में हो रहा है। अगर तो आप रिश्तों के लिए वज़ाइफ पढ़ रहे हैं और बग़ैर किसी की इजाज़त के, शराइत के पढ़ रहे हैं, जब तक आप वज़ाइफ बंद नहीं करेंगे, शाफी ने क़यामत तक का वक्त दिया हुआ है, रिश्ते होने वाले नहीं हैं। आमलीन क्या, जो आमलीन के सरदार हैं, आप उनसे भी जाके इलाज करवा लें, इलाज नहीं होना। और अगर बेलफर्ज तकदीर का लिखा रिश्ता हो भी जाता है और रुखसती भी हो जाती है, अगर आपका बेटा, आपकी बेटी, या जिसको आप अपने घर में लेकर आ रहे हैं, बहू है, अगर वो बस जाए तो शाफी को शाफी ना कहना। यानी ऐसे बच्चों के रिश्ते होते नहीं, अगर हो जाए तो सुख नाम की चीज़ नहीं मिलनी, आपको खुशियां नहीं मिलनी, पहले तो होंगे नहीं, और अगर हो जाएंगे तो सुकून नहीं आना। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कहते हैं जी हम वज़ाइफ पढ़ने वाले नहीं हैं, जी अपने मसाइल का इलाज किसी आमिल से नहीं करवा रहे, लेकिन मेरी वालदा वज़ाइफ पढ़ने वाली है, मेरे वालिद साहब बहुत वज़ाइफ पढ़ते हैं, तो जब तक वालिद साहब और वालदा वज़ाइफ बंद नहीं करेंगे, रिश्ते होने वाले नहीं हैं। यानी चाहे वालिदैन वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, घर का कोई फ़र्द और है वो वज़ाइफ पढ़ रहा है, या जिन उम्मीदवारों के रिश्ते करने हैं, बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, वो खुद वज़ाइफ कर रहे हैं, रिश्ते होने वाले नहीं हैं। बात असल वजीफ़ा है, वो मैं करूं, आप करें, वालिदैन करें, कोई भी करे, बात है वजीफ़ा। जब वज़ाइफ शराइत के बगैर होंगे और आप बार बार वज़ाइफ बदलेंगे भी, क्यों, जब आपके काम नहीं होंगे तो आप वज़ाइफ बदलने पे मजबूर हो जाएंगे। फिर जब इंसान परेशान होता है, कभी वो इससे मिलता है, कभी उनसे मिलता है, तो हर बंदा अपनी अकल और फरासत के मुताबिक उसको मशवरे देता है, ये पढ़ो, ये पढ़ो, हमने ये पढ़ा था, हमारा काम तो हो गया था, हम फुला बाबे के पास गए थे, उन्होंने ये तवीज़ दिया था, हमारा काम तो हो गया था। अब जो डूब रहा है बेचारा, वो तो परेशान है,
उसको तो क्या चाहिए? सहारा, कि किसी तरह मैं निकल जाऊं या मुझे कोई निकाल दे। तो जब अफरा तफरी का आलम होता है, फिर वजीफे पे वजीफा, वजीफे पे वजीफा, जिसको मैं कह रहा था, फिर मक्खी पे मक्खी, मक्खी पे मक्खी मारी जाएगी। जितनी मक्खियां मारेंगे उतना गंद ज्यादा मचेगा, सफाई नहीं होनी। चाहे ये काम या ये हरकत आप खुद करें या पैसे दे के आमलीन से करवाएं, नतीजा एक ही निकलना है, बर्बादी, बर्बादी और बर्बादी के। तो अर्ज ये करना चाहता हूं, अगर आप रिश्तों के लिए वज़ाइफ कर रहे हैं तब भी आप बंद करें। अगर आपके घर में वालिदैन दोनों या दोनों में कोई एक या घर का कोई और फर्द माह अजर सवाब के लिए वज़ाइफ कर रहा है तो वज़ाइफ बंद करने पड़ेंगे। देखें, जिन घरों के अंदर वज़ाइफ पड़ जाते हैं बग़ैर शराइत के, जब उनका असर बद आएगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि कोई भी वजीफ़ा आपके ऊपर असर नहीं करेगा। आपने ये कहा कि जहां हम जाते हैं वो लोग कहते हैं कि आपके रिश्ते बांधे हुए हैं। आप पहले इस बात को समझ लें, फिर जो बात मैंने की है और जो बात मैं मज़ीद करूंगा इंशाअल्लाह वो आपके दिल में अल्लाह उतार देगा। कम अज़ कम 100 से ज़्यादा बयानात होंगे शाफिया सोशल मीडिया पे मेरे, जिनमें मैंने ये फ़िक्रा बोला होगा या ये बातें कही होंगी कि जादू कोई मसला नहीं है, जादू कोई मसला नहीं है, जादू कोई मसला नहीं है। रिश्तों की बंदिश जादू, तो जादू कोई मसला नहीं है। जितना भी बदतरीन जादू किया हो, जितना भी सख्त जादू किया हो, अपने दिल में एक बात उतार लें कि जादू का एक वक्त है, चाहे वो 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, 7 दिन हो, साल हो या 10 साल हो या 50 साल हो, उसकी एक लिमिट है। उसने टूट कर रहना है, टूट कर रहना है, टूट कर रहना है। वो बातिल है, वो धोखा है, उसने खत्म होकर रहना है। जादू हमेशा ज़हन में ये बात याद रखें, अनलिमिटेड नहीं होता। लामहदूद, गैर महदूद या गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं होता। जिस तरह आप आज अमीर हैं तो इस बात की जमानत नहीं है कि आपकी नस्लें भी अमीर रहेंगी या आप मरते दम तक ऐसे खुशहाल रहेंगे। या आज आप जवान हैं तो आप हमेशा जवान रहेंगे, या आज कोई बच्चा है तो वो हमेशा बच्चा रहेगा। ये हालत बदलती है, दुनिया हरकत में है, हालत बदलेगी, हालात बदल जाएंगे। इसी तरह जिसने भी जादू किया हुआ है उसका एक वक्त है, उस वक्त पे जाके उस जादू ने ख़त्म होना ही होना है, चाहे आप कोई इलाज करें तो चाहे आप कोई इलाज ना करें। इलाज करेंगे तो बर्बादी से, तबाही से आप बच जाएंगे, इलाज नहीं करेंगे तो तबाही बर्बादी आएगी, नुकसानात होंगे, आजमाइश से आप गुजरेंगे ज़्यादा। लेकिन जादू ने ख़त्म होकर रहना है। उसकी दलील क्या है? हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान हैं, मुसलमान हैं। हमारे ऊपर किसी बदबख्त ने जादू कर दिया, अब हमें इल्म नहीं है कि जादू हुआ है, अब हमें ख्वाब तो नहीं आ गया कि जादू हुआ है, ना हम इस तरह के मुसाफिर हैं, ना हमें कोई मालूमात है। अब किसी ने जादू कर दिया है, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले किसी ने हमारे पे वार किया, अब हमें पता नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की बरकत से हम जो आमाल करते हैं, हर अच्छा अमल उस जादू को बेअसर करता जा रहा है। कितने बयानात में मैंने ये बात समझाई है कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर अगली सुबह तक जितने भी आप आमाल करते हैं, हर अमल से नेगेटिव एनर्जी का जोर टूटता है, जादू का जोर टूटता है, यानी जादू ख़त्म होता जाता है। जबकि किसी पढ़ाई की मैं बात या वजीफे की बात नहीं कर रहा। जिस तरह आप सुबह नमाज के लिए उठे, आपका नमाज के लिए उठना, उससे पहले बैतुल खला में जाना, वो आपकी अपनी ज़ाती ज़रूरत है, बदन की, जिस्म की ज़रूरत है, उससे भी जादू टूटेगा। आपने वज़ू किया, उससे भी जादू टूटेगा। वज़ू से पहले आपने टूथब्रश कर लिया या मिसवाक कर ली, उससे भी जादू टूटेगा। उसके बाद नमाज पढ़ी तो कमाल हो गया, उससे भी जादू टूटेगा। फिर आप दफ्तर जाने लगे, अपने कारोबार पे जाने लगे, आपने गुस्ल किया, गुस्ल से भी जादू टूटेगा।
फिर आप अपने बीवी बच्चों को वक्त दे रहे हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, स्कूल से लेकर आ रहे हैं, अपने दफ्तर जा रहे हैं, अपने कारोबार की जगह जा रहे हैं, पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं। सारा दिन जो दौड़ धूप आप करेंगे, हर लम्हे में वो जादू टूटता जाएगा, आपको पता भी नहीं। फिर जोर की नमाज हो गई, असर की नमाज हो गई, कुरान की तिलावत की, कोई मांगने के लिए आ गया, आपने 5-10 रुपए उसको दे दिए, जादू टूट रहा है। शाम को थक हार के आप घर आए, बच्चों के लिए रोटी कमा के, जादू टूट रहा है। वालिदैन की खिदमत की, बीवी बच्चों की खिदमत की, ठीक है, घर के कामकाज किए। इस तरह खवातीन हैं, वो सारा दिन जो घर के कामकाज कर रही हैं, हर काम के ऊपर जादू टूट रहा है। इसलिए अल्लाह वालों मैं कहता हूं कि गिदड़ बन के नहीं, शेर बन के जियो। जादू कोई मसला नहीं है, किसी के पास इलाज के लिए जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो जादू जो बहुत ज्यादा हलाकत वाला होता है, या हलाकत वाला अमल होता है, या जानलेवा होता है, वो लाखों में कोई एक कर पाता है, और लाखों में से किसी एक के ऊपर वो चलता है। आप ये समझते हो कि हम औलाद के वारस हैं, हम औलाद के सर पे हैं, हमारी औलाद लावारस नहीं है। तो जिसने ये कायनात बनाई है, ये सारी कायनात लावारस हो गई है, इसका कोई मालिक नहीं है। कि जादूगर जो मर्जी करते फिर उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। माज़अल्लाह कोई अलग ताकत है। तो अल्लाह जिस तरह हम पाबंद हैं, हमारी ताकत या हमारा अख्तियार महदूद है, इस तरह जादूगर का जो अमल है, ये जादूगर खुद है, उसका अमल भी महदूद है और वो जादूगर की ताकत भी महदूद है। इसलिए जादू से नहीं डरो, अपनी हरकतों से डरो, गुनाहों से डरो, अल्लाह की नाराजगी से डरो। जादू मसला नहीं है। जादू आप पाक साफ रहेंगे, जादू खत्म हो जाएगा। बावजू रहोगे, जादू खत्म हो जाएगा। सदका खैरात करते रहोगे, जादू खत्म हो जाएगा। 10-15 दिन उसका जोर रहेगा। जितना सदका खैरात ज्यादा करते रहोगे, 10-15 दिन के बाद जितना भी सख्त जादू होगा, उसका जोर टूटना शुरू हो जाएगा। जिस तरह मैंने पहले बात कही कि चाहे जादू 10 दिन बाद टूटे या 10 महीने बाद टूटे, जादू ने टूट कर रहना। अब मैं आसान सी मिसाल देता हूं तो बात को खत्म कर देता हूं। आपको फ्लू हो गया, आपको जुकाम हो गया, या आपको सीजनल कफ हो गई, यानी खांसी मौसम की वजह से लग गई। अगर आप इलाज कर लोगे तो 2-4-5 दिन में आप बेहतर हो जाओगे। अगर आप इलाज नहीं करोगे तो 10 दिन में आपने ठीक तब भी हो ही जाना है। अब फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, उसका 7 दिन का साइकिल है। 7 दिन के बाद चाहे आप इलाज करो, चाहे आप इलाज ना करो, आपने ठीक हो जाना। इस तरह खांसी शुरू हो गई, आप उसकी मेडिसिन ले लेंगे, एंटीबायोटिक ले लेंगे, किसी डॉक्टर से मेडिकेशन शुरू करवा लेंगे, आप 2-4-5 दिन में ठीक हो जाएंगे। और अगर आप खांसी का इलाज नहीं करवाते, या फ्लू का इलाज, जुकाम का इलाज नहीं करवाते, महज आप एहतियात करते हैं, 2-4 दिन उसका फ्लू का जोर रहेगा, खांसी का जोर रहेगा, बलगम भी आएगी, बुखार भी हो सकता है, जिसमें दर्दें भी हो सकती हैं, दफ्तर से, कॉलेज से, स्कूल से, अपनी दुकान से छुट्टी भी करनी पड़ सकती है। लेकिन 4-5वें दिन उसका जोर टूट जाएगा। पहले ये यूं जाएगा, इसका पीक आएगा, उसके बाद डाउन हो जाएगा। 8वें-10वें दिन आप बगैर दवाई के भी फिट हो जाएंगे। क्या हम नहीं होते? इसी तरह जादू का है, इलाज करवाओगे जरा जल्दी अफाका हो जाएगा, या इलाज करोगे तो जल्दी अफाका हो जाएगा। और अगर नहीं करोगे तो मैंने बताया है कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफत रखी है, इम्यूनिटी रखी है, कि हमारा जिस्म खुद बीमारियों से लड़ता है। सिर्फ हम साथ एहतियात करें तो किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। यही हमारी शरीयत जो है वो सिखाती है। इसी तरह जादू है, उसके खिलाफ अल्लाह ने हमारे ईमान के अंदर इम्यूनिटी रखी है। जिस तरह बदन के अंदर कुव्वत मुदाफत रखी है, इम्यूनिटी रखी है, इस तरह ईमान के अंदर भी इम्यूनिटी है। आप गुनाहों से बचते रहें, जिस तरह उधर जिस्म के लिए परहेज करनी है, ऐसे इधर भी गुनाहों से परहेज करनी है। इसलिए रब फरमाता है फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है तकवा अख्तियार करो, गुनाहों से बचो। जब आप गुनाहों से बचते रहोगे तो आप जादू से यानी रूहानी बीमारियों से निकल जाओगे।
अगर आप एहतियात करते रहोगे तो बदनी बीमारियों से आप निकल जाओ। अब मैंने आपको दलील के साथ बात समझा दी है। अगर बदनी बीमारियां हैं, आप महज एहतियात करना शुरू कर दें, आप धीरे धीरे तमाम बीमारियों से निकल जाएंगे। और अगर आप बीमार नहीं हैं, आप एहतियात करते रहें, इंशाअल्लाह तादम मौत आप बीमार नहीं होंगे। जिस तरह सहाबा बीमार नहीं होते थे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बीमार नहीं होंगे। इसी तरह गुनाहों से बचते रहो। जादू करने वाले, नजर बद का वार करने वाले, हसरत का वार करने वाले अपने काम करते रहेंगे, लेकिन जो ईमान के अंदर कुव्वत मुदाफत है, इम्यूनिटी है, वो उस जादू को, उस वार को चलने नहीं देगी। और अगर थोड़ा सा चल भी जाता है तो 8-10 दिन में उसका जोर टूट जाएगा। आपको किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं है और किसी आमिल के पास जाके इलाज करवाने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात सुन के कुछ शर्म आई है कि किन कामों में आप लगे हुए हैं। जो पैसा आमलीन को देते हो जा जा के लाखों रुपया, मैं कह रहा हूं अपने हाथ से अल्लाह की राह में खर्च करो। उधर नहीं आते, आमलीन को देने के लिए पैसा है, अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपने जादू का इलाज किसी आमिल से करवा लिया, वक्ती आपको अफाका होगा, ये बात भी लिख कर रख लो, वक्ती अफाका होगा, उसके बाद वो दोबारा जादू का मसला शुरू हो जाएगा। और अगर आमिल बेईमान हो गया, जो कि 99% हो जाते हैं, उसको पता चल गया कि आपके घर में दाने हैं, आपके घर से फिर जादू कभी खत्म नहीं होता। जादू उसी दिन ही आपके घर से खत्म होना है जिस दिन शाफी ने कहा हुआ है कि आपके बाएं हाथ की तीसरी उंगली के ऊपर बवासीर का छल्ला चढ़ना है। यानी आपने जिस दिन रोड पे आ जाना है, जादू उसी दिन ही खत्म होना है, चाहे आप अरबपति हैं, करोड़पति हैं या खरबपति हैं, आमिल आपको छोड़ने वाला नहीं है। जब बिल्कुल वो निचोड़ लेगा, ईमान भी ले जाएगा, माल भी ले जाएगा, और आप रोड पे होगे, अल्लाह के बारे में भी गिले शिकवे कर रहे होगे और मखलूक खुदा को भी गालियां दे रहे होगे, और हर बंदा आपको चोर ही नजर आ रहा होगा, उस दिन आमिल आपकी जान छोड़ेगा। ये हो गया आमिलीन के हवाले से जो लिखा हुआ है। और पहले मैंने बात की है कि अगर खुद जादू के इलाज में और इन कामों में पड़ जाओगे या आमिलीन के पास जाके इलाज के चक्रों में पड़ जाओगे तो जादू के इलाज की ज़रूरत ही नहीं है। साफ़ सुथरे रहो, तकवा अख्तियार करो, सदका खैरात करो, बस ज़िंदगी गुजारो। जादू हुआ भी है और जादू होता भी रहता है और जादू टूटता भी रहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दो बातें होंगी। तीसरी बात असल है जिसका कोई इलाज नहीं है, वो है कि जब आप वज़ाइफ पे वज़ाइफ पढ़ते जाओगे अपने मसाइल को हल करने के लिए, इसका कोई इलाज नहीं है। आप जादू की वजह से परेशान हो, मैंने आपकी परेशानी, आपका सारा गम, आपका सारा दुख और तकलीफ निकाल दिया, भाई वो तो परेशानी नहीं है, वो तो मसला ही नहीं है। और मैंने मसाले भी दिए हैं, दलाइल भी दिए हैं। मसला यह है कि जिस डगर पे आप चल पड़े हो कि वज़ाइफ पे वज़ाइफ, वज़ाइफ पे वज़ाइफ, वज़ाइफ पे वज़ाइफ, उसका कोई इलाज नहीं है। अब मैं बीमार ही नहीं हूं तो मैं रोजाना 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम पैनाडोल की खाना शुरू कर दूं कि भाई मुझे बुखार है, जबकि मुझे बुखार है नहीं है और मेरे बॉडी में कोई इन्फेक्शन है नहीं है, और मैं साथ जो है सिप्राफ्लॉक्सिसिन शुरू कर लूँ, ऑगमेंटिन शुरू कर लूँ, यानी कोई एंटीबायोटिक शुरू कर लूँ। मुझे बताओ 1 हफ्ते बाद मेरे जिस्म का कबाड़ा होगा कि नहीं होगा? अब उस मसले का कोई हल है? कोई हल नहीं है जब तक मैं गैर ज़रूरी अननेसेसरी मेडिकेशन जो है उसको बंद नहीं करूंगा। अब अननेसेसरी मेडिकेशन भी मैंने बंद कर दी, लेकिन जो जिस्म को नुकसान होना था वो हो चुका। तो इसका नाम है वज़ाइफ का असर बाद, इसका नाम है रजत। अब आप पिछले 8 साल से आमिलीन से इलाज करवा रहे हैं और ख़ुद भी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। आपने तो 8 साल की बात की है, मैंने क़यामत तक का वक्त दिया हुआ है कि क़यामत तक आप इलाज करते रहें, करवाते रहें, वज़ाइफ पढ़ते रहें, पढ़वाते रहें, रिश्ते होने वाले नहीं हैं। हर आने वाला दिन आपका बद से बदतर होगा। अगली बात और बड़ी अहम बात, अगर तो वाकई ही आपके किसी ने रिश्ते बांधे हैं, ये जादू हुआ है, आज आपने पढ़ाई शुरू की, 7वें दिन आपको रिजल्ट मिलना चाहिए और मिलता है और हर सूरत में मिलेगा। क्यों? 7वां दिन रूहानियत का है।
جو بھی آپ وظیفہ شروع کرو گے، کوئی وظیفہ دوسرے دن، کوئی وظیفہ پہلے دن، کوئی وظیفہ چوتھے دن، کوئی وظیفہ پانچویں دن، حد ساتویں دن ہر عمل، چاہے وہ قرآنی ہو، چاہے وہ مستحب کوئی عمل ہو یا کوئی مسنون عمل ہو، کسی بھی طرح کا عمل ہو جو آپ جادو کی کاٹ کے لیے کر رہے، ساتویں دن اس نے اپنا اثر دکھا کر رہنا ہے، دکھا کر رہنا ہے، دکھا کر رہنا ہے۔ چاہے آپ کا ایمان اتنا سا ہے، اتنا سا ہے، اتنا سا ہے، یا ہماری طرح بالکل آپ فارغ ہیں، جس بھی درجے پہ ہیں آپ ایمان کے، ساتویں دن وظیفے نے اپنا اثر دکھانا ہے۔ جس طرح اینٹی بائیوٹک ہے، آپ لیں گے اینٹی بائیوٹک کی جب کم از کم 4 سے 5 خوراکیں آپ کے جسم میں چلی جائیں گی تو اس نے اپنا اثر دکھانا ہی دکھانا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اینٹی بائیوٹک صحیح جو ہے وہ آپ کو دی جا رہی ہو، یعنی جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ کوئی بھی عمل کریں گے جادو کی کاٹ کے لیے یا کسی سے کروائیں گے، ساتویں دن آپ کو افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے بعد دھیرے 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 وہ جادو ختم ہوتا ہے۔ یہ ہے جادو، اس کو ایک طرح رکھیں۔ دوسرا ہے کہ آپ پہ جادو ہے ہی نہیں، آپ نے انہوں نے کہا کہ جادو بنا دیا، عاملین نے کہا کہ جادو بنا دیا۔ اب آپ وظائف پڑھتے جائیں گے، ہر وظیفہ بے اثر ہوتا جائے گا، بے اثر ہوتا جائے گا۔ کوئی وظیفہ چلے گا بھی تو 5 10 دن 15 دن مہینہ آرام رہے گا، اس کے بعد وہ وظیفہ بے اثر ہو جائے گا۔ پھر آپ وہ وظیفہ چھوڑیں گے، پھر آپ نئے شروع کر دیں گے، پھر اس عامل کا علاج چھوڑیں گے، اس عامل کا شروع کر دیں گے۔ جب ہر علاج اور ہر وظیفہ بے اثر ہونا شروع ہو جائے اور زندگی کے 8 10 سال یوں برباد ہو جائیں تو عقل آ جانی چاہیے کہ بھائی وظیفہ اثر کیوں نہیں کر رہا۔ جب ڈاکٹروں سے علاج کرواتے ہو تو ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی، دوائی اثر نہیں کرتی، تو تمہاری کھوپڑی کام کرتی ہے نا کہ جی ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، کوئی دوائی اثر ہی نہیں کر رہی، اس کا مطلب ہے جادو ہو گیا ہے، آ کر کہتے ہو نا ہمیں۔ تو جب جادو کا علاج کر رہے ہو یا اپنے مسائل کا علاج کر رہے ہو تو کوئی وظیفہ اثر نہیں کر رہا، تو لوگوں کے پاس، عاملین کے پاس، مولویوں کے پاس، پیروں کے پاس جا کے احتجاج کیوں نہیں کرتے کہ وظیفہ اثر کیوں نہیں کر رہا؟ وہاں جا کے سوال آپ نے یہ کرنا ہے وظیفہ اثر کیوں نہیں کر رہا، وہاں جا کے اور وظیفے لے کر آ جاتے ہو۔ اس سوال کا جواب لے کر آؤ، چاہے کوئی فی سبیل اللہ جواب دے دے، چاہے کوئی پیسے لے کے جواب دے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ آپ کو پہلے وجہ معلوم ہونی چاہیے کہ میرا عمل اثر کیوں نہیں کر رہا، میں 1.5 سال سے سورۃ بقرہ روزانہ پڑھ رہی ہوں، مجھے رزلٹ کیوں نہیں مل رہا؟ تو جب رزلٹ نہیں ملے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے وظائف فاسد ہو رہے ہیں، یعنی آپ جناتی جادو کا اب شکار ہو گئے ہیں، یعنی اب رجت کا شکار ہو گئے۔ اب اس سے آپ نکلنے والے نہیں ہیں، قیامت پہ قیامت آ جائے گی لیکن آپ نکلنے والے نہیں ہیں۔ اور اگر بالفرض جیسا میں نے شروع میں کہا کہ آپ کا رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو خوشیاں آپ کو کبھی نہیں ملے گی، ہر آنے والا دن بد سے بدتر ہوگا۔ اب یہ میں نے ساری جو راکٹ سائنس ہے وہ بھی آپ کو سمجھا دی ہے۔ اگر آپ جادو کا واقعی شکار ہے، اس کا سب سے بڑا جو واضح ثبوت ہے یا اس کی جو نشانی ہے وہ یہ کہ جو عمل آپ کریں گے 7ویں دن آپ کو نفع ہونا شروع ہو جائے گا، آگے چاہے مہینہ لگے، 2 لگے، 3 لگے، ہر آنے والا دن بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ جبکہ رجت کا آپ شکار ہوگے تو کوئی عمل نہیں چلے گا، اگر چلے گا بھی تو چند دن کے لیے چلے گا، پھر وہ عمل فاسد ہو جائے گا، پھر آپ وہ وظیفہ چھوڑیں گے نیا، پھر چھوڑیں گے نیا، اور آپ کا ہر آنے والا دن بد سے بدتر، بد سے بدتر، بد سے بدتر، اور اسی طرح آپ قبر میں اتر جائیں گے اور اولادوں کو سڑکوں پہ، روڈ پہ چھوڑ کے بے یار و مددگار یہ لچے لفنگے بدماش اوباش بن جائیں گے اور کنگال ہو جائیں گے۔ یہ صورتحال ہوگی رجت کی وجہ سے، اور جادو کی وجہ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جادو میں اگر کوئی مر گیا تو وہ شہید ہے، رجت میں جو مر گیا اس کے ایمان کی بھی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، وہ ایمان پہ بھی مرے گا۔ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ کر یہ روتے ہیں۔ اب جمعرات کو لاہور سے ایک صاحب آئے جو فجر کے بعد گئے ہیں، وہ قاری مرتضی صاحب میرے سے فتویٰ لینے کے لیے آئے تھے، لاہور سے اتنا سفر کر کے پلے پائی کھانے کو نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے کرائے کا بندوبست کیا ہے۔
यहां आए हैं मेरे पास फतवा लेने के लिए कि हजरत साहब मुझे फतवा दे दें कि क्या मैं खुदकुशी कर सकता हूं, मैं अपने आप को ट्रेन के नीचे दे दूं या गोली मार लूं या जहर की पूड़ी खा लूं। मुझे फतवा दे दे कि मैं वजीफे पढ़ पढ़ के मर गया हूं, मेरा भट्ठा था वो उजड़ गया, पता नहीं मेरी कितने मुरब्बे ज़मीन थी वो उजड़ गई, बीवी मुझे छोड़ गई, बच्चे मुझे छोड़ गए, घर से मुझे निकाल दिया है और मेरी औलाद मुझे हेलो कह के पुकारती है, ओए हेलो, ओए हेलो, यूं मेरी औलाद मुझे पुकारती है। यानी मुझे कोई बाप कह के, अब्बू कह के, जो एक घर का माहौल होता है या माहौल था वो नहीं रहा, मुझे हेलो, ओए गल सुन, ये मुझे करके पुकारते हैं। तो मैं मर गया हूं, मुझे फतवा दे दें, मुझे इजाजत दे दें कि मैं अपने आप को गोली मार लूं। हाँ, मुझे अल्लाह वालों बताओ, मेरी जगह पे आप बैठे हो, आप इस सवाल का क्या जवाब दोगे? हमने 2 घंटे लगा के उनका माइंडसेट बदल के, ब्रेन वॉशिंग करके, उनको नॉर्मल करके यहां से भेजा है, कहीं वाकई जाकर किसी सिर ना दे देवे है या किसी का सिर ले ना लवे। ये है वज़ाइफ। क्यों? उन्होंने वज़ाइफ इतने किए छोड़े, अब उन शयातीन ने सारा घर, सारी नस्ल बर्बाद करके रख दी। अब अल्लाह बोलो, ये शख्स जो रजत का मारा हुआ है, कौन इसकी जमानत देगा कि ये ईमान पे मरेगा? जमानत तो किसी की भी नहीं है, लेकिन उसके तो हालात भी बता रहे हैं। जो बंदा फतवे लेते फिर रहा है, जरा सा डिप्रेशन बढ़ेगा, नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी, शयातीन की तवज्जो बढ़ेगी, वो कोई भी कदम इंतहाई उठा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अर्ज अल्लाह वालों ये करना चाहता हूँ, वो तमाम माँ बाप, बच्चे बच्चियाँ जो अपने मसाइल के लिए वज़ाइफ कर रहे हैं, जब तक आप वज़ाइफ नहीं छोड़ोगे, शाफी से भी आपको कोई नफ़ा होने वाला नहीं है। बाकी अगर मेरी बात समझ आ गई है आपको यहाँ तक सुन के, तो वज़ाइफ से तौबा कर लो। कोई आपके ऊपर जादू है, मैं बताता हूँ इसका मसला, मैं बताता हूँ कि ये मसला कैसे हल होना है। वज़ाइफ से तौबा आप कर लो। वज़ाइफ का असर बद जो आपके ऊपर पहले आ चुका है, अब उसको जो है वो डिलीट कैसे करना है, उसको डिफ्यूज़ कैसे करना है, नॉर्मलाइज हालात को कैसे कर, वो मैं आपको गाइड करता हूँ। आप उसके मुताबिक चलें, वक्त लगेगा। ये बात पहले अपनी खोपड़ी शरीफ से निकाल दें कि अब हाथ पे सरसों नहीं जमनी। अगर आप होंगे जादू के मरीज, तो मैंने क्या कहा कि 7वें दिन रिजल्ट मिलेगा, हाथ पे सरसों जमेगी अल्लाह के हुक्म से। अगर आपने पड़े हुए हैं वज़ाइफ, तो फिर हाथ पे सरसों नहीं जमनी। फिर कई तरह आपको हाथ मलने पड़ेंगे, महीना भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने वज़ाइफ शराइत के बगैर किए हैं और केड़े अगे शाह, पिछे शाह, करंट शाह, सोलर शाह, शलवार शाह के पास आप गए हैं। नीला, पीला, चिट्टा, काला किस दर्जे का आपने किया है और कितने साल से इस गोरख धंधे में आप मुलव्वस है, ये इसके ऊपर इसका इन्हिसार है। तो यूं आपको रज्जत से निकलते महीने भी लग सकते, साल भी लग सकते और हफ्ते भी लग सकते हैं। जबकि जादू का मैं आपको बता रहा हूं, बल्कि गारंटी दे रहा हूं, आपको यकीन दिला रहा हूं कि 7वें दिन मामलात बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। लेकिन दोनों कामों का इलाज करने के लिए पहले क्या है कि ऐ अल्लाह मेरी तौबा, जो कुछ कर चुके हो, मैं नहीं कहता आपने बुरा किया, आपने जो अच्छा भी किया बुरा भी किया, बस गुनाहों से तौबा कर लो, पहली बात। दूसरी बात, वज़ाइफ से तौबा। अगर तो आपका दिल मुतमईन हो गया मेरी बातें सुन के, गुनाहों से भी तौबा, वज़ाइफ से भी तौबा, आज के बाद किसी आमिल के पास नहीं जाना, घर बैठ के अपना इलाज करना है, तो मैं हाजिर हूँ। और अगर आपका दिल मुतमईन नहीं हुआ तो रसाला भी है, आमिल भी हैं, 10 जुतियाँ भी हैं, ने ते जलाना वाला काम भी है, सारे काम मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशरे के अंदर। जहां आपका दिल मुतमईन होता है, आप अपना काम जारी रखें। वो हजरात जिनको मेरी बात समझ आ गई है, अब वो चाहते हैं कि जी जो अच्छा बुरा हो गया वो ख़त्म, हम तौबा के लिए भी तैयार है और आइंदा वज़ाइफ नहीं पड़ेंगे। अपने घर के अंदर नक्श लगे हुए हैं, तावीज़ात हैं, कील रखे हुए हैं, से के कांटे हैं, जूता कोई है, कोई कपड़ा किसी ने पढ़ कर दिया हुआ है लटकाने के लिए या किसी सूरत में घर में रखने के लिए, इस तरह मोर का पंख है, जूता है बच्चे का, वगैरह वगैरह, या कोई नक्श आपने बाजू के साथ बांधा हुआ है, गले में लटकाया हुआ है, वगैरह वगैरह, या घर के ऊपर कोई हंडिया रखी हुई है, कोई गंद बलंद है, खुराफात है, अपने घर को भी साफ करो, अपने आप को भी साफ करो। तौबा कर ली ना अब हमने, अब हम इलाज की तरफ चल पड़े। अब पहले आप करेंगे तौबा गुनाहों की,
پھر توبہ کریں گے آپ کہ آئندہ وظائف نہیں کرنے. 2 کام ہو گئے. تیسرا کام کیا ہے؟ گھر کو بھی صاف کریں گے, اپنے آپ کو بھی صاف کریں گے. اب آپ تیار ہو گئے. اس کو ہم اپنی میڈیکل کی زبان میں کہتے ہیں پیشنٹ پریپریشن, یعنی پیشنٹ پریپیئر ہو گیا او ٹی میں لے جانے کے لیے, یعنی آپریٹ کرنے کے لیے, علاج کے لیے مریض تیار ہو گیا. یہ ہماری تیاری ہو گئی ہے علاج کے لیے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, خضری عمل کا حصار کریں گے. آپ میں سے وہ حضرات جو پہلی بار آئے جنہیں معلوم نہیں ہے خضری عمل, آپ یوٹیوب پہ جائیں, وہاں جا کے لکھیں خضری عمل ڈاکٹر حامد شافی. ہمارا آفیشیل چینل آرزو اور ہمارا آفیشیل چینل پیغام آپ کے سامنے آ جائے گا. خضری عمل سامنے آ جائے گا, اسے پڑھیں, سمجھیں کہ اپنا بدنی اور روحانی حصار کیسے کرتے. جب تک حصار نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی علاج نہیں ہو سکتا, نہ آپ جادو سے بچ سکتے ہیں. حصار نہ کر کے تو آپ اجڑے ہیں. جو وظائف کی شرائط ہیں ان شرائط میں سے پہلی شرط توبہ کے بعد حصار ہے, جو کہ آپ کو نہ سکھایا گیا, نہ آپ نے سیکھا, نہ آپ نے کیا. تو پہلا کام کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز, خضری عمل کا حصار. اگر آپ کہتے ہیں جی میں گھر میں نماز نہیں پڑھوں گا, حضرت صاحب وظیفے کر لوں گا, تو لالا میرے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں ہے. جس کی نماز ہی نہیں ہے اس کو وظیفے سے کیا نفع ہونا ہے؟ تو پہلا کام کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز توبہ کے بعد, اس کے ساتھ خضری عمل کا حصار. سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں, جون سا مرضی پڑھیں, چھوٹا پڑھیں, بڑا پڑھیں. کملی چینل کے اوپر تمام بیانات پڑھیں, وہ سنیں جو آپ کو آسان لگتا ہے سیگا. بس ایک سیگے کو پکڑ لینا, بار بار سیگا نہیں بدلنا. رات سونے سے پہلے ایک تسبیح سعید الاستغفار کی آپ کریں گے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. رزق حلال کماؤ اور کھاؤ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. یہ 5 کام امت کو بتاتا ہوں, یہی 5 کام آپ کے لیے. ان 5 کاموں کو مؤثر کرنے کے لیے جو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, یعنی صدقہ خیرات کرو. یہ جنرل ٹریٹمنٹ ہو گیا, یا جنرل اعمال ہو گئے, عمومی اعمال ہو گئے, جو میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں اور سب کو بتاتا ہوں. یہی آپ لوگوں نے کرنے ہیں جن کے رشتوں کا مسئلہ ہے, مالی تنگ دستی کا مسئلہ ہے, رجعت کا مسئلہ ہے, جادو کا مسئلہ ہے, گھر میں بیماریوں کا مسئلہ ہے, لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہے, کسی بھی طرح کے مسائل ہیں, یا قرض کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب نے یہ والے اعمال کرنے ہیں, کیونکہ یہ بنیاد ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے. جب تک یہ نہیں آپ کریں گے, ہم بند نہیں باندھیں گے, آگے نہیں ہم چل سکتے. یہ جنرل اعمال آپ نے کر لی, عمومی اعمال کر لی. اب آپ نے عمل کرنا ہے, رشتوں کی بندش ہے تو وہ کھولنے کے لیے, اگر رجعت کی وجہ سے اثرات آگے ہوئے ان اثرات کو ختم کرنے کے لیے, اس کے لیے ہم جو عمل کریں گے وہ ہے سورہ تغابن کا. آپ رجعت کی وجہ سے مالی طور پہ برباد ہو گئے ہوئے, وظائف پڑھ پڑھ کے بالکل کنگال ہو گئے ہوئے ہیں, صحت برباد ہو گئی ہوئی ہے, اولاد غلط رستوں پہ چل پڑی ہے, قرض میں جکڑے گئے ہیں, یا روحانی مسافر تھے تو آپ کی روحانیت ساری ختم ہو گئی ہے, عملیات کے مسافر تھے تو آپ کی طاقت, آپ کا اختیار یا آپ کا عمل جو ہے وہ کسی نے باندھ دیا ہے, یا عمل بے اثر ہو گیا, وغیرہ وغیرہ. پہلے یہ عمومی اعمال یعنی 5 جو میں نے بتائے وہ کرنے, اس کے ساتھ ہم نے کرنا ہے سورہ تغابن کا عمل. وہ لوگ جو ان مسز الطاف میمن کی طرح ہیں, بیٹیوں کے رشتے ہیں, وہ بھی یہ عمل کریں گے. جن کے صحت کے مسائل ہیں وہ بھی یہ عمل کریں گے, جن کے مالی مسائل ہیں وہ بھی یہ عمل کریں گے. یعنی جو بھی اب آپ کا مسئلہ ہے, رجعت ضروری نہیں ہے کہ آپ کے رشتے ہی باندھے یا رشتے ہی متاثر کرے. بعض لوگ ہیں ان کے گھروں میں رجعت کی وجہ سے لا علاج بیماریاں ہیں, بعض لوگ ہیں ان کے گھروں میں وظائف کی وجہ سے, رجعت کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہیں, اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر رجعت پڑی ان کے بچے ایب نارمل ہو گئے, اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی. عرض یہ کر رہا ہوں کہ کسی بھی طرح کے مسئلے میں پھنسے ہیں, آپ نے صرف میری بات کو یہ نہیں لینا کہ میں مسز الطاف کو جواب دے رہا ہوں, میں ساری امت کو جواب دے رہا ہوں کہ کسی بھی مسئلے میں پھنسے ہیں. پہلے یہ 5 اعمال جو عمومی ہیں یہ کریں گے, اس کے بعد سورہ تغابن کا عمل کریں گے. جو آپ کا مسئلہ ہے اس کو ذہن میں رکھ کے اس کی نیت کے ساتھ کریں گے, انشاءاللہ جادو ہوا تو وہ ختم ہو جائے گا, اگر رجعت ہے تو وہ ختم ہو جائے گی. شرط وہی ہے کہ پھر اس عمل کے ساتھ کوئی عمل نہیں کرنا. کیوں؟ پہلے میں نے توبہ کروائی ہے,
गुनाहों से तौबा, वज़ाइफ से तौबा, फिर 5 अमाल। अब ये साथ मैं इलाज बता रहा हूँ, ये इलाज करो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी झोलियाँ भर देगा और आपको रिजल्ट मिलेगा। 6-7 हफ्ते के अंदर आज आपका निज़ाम खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात कि रजत वालों के लिए निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा। मैंने पहले ये बात वाज़ेह कर दी, अगर आप बेसब्री का मुजाहरा करोगे, अमल तोड़ोगे, तो जो अमल मैं बताने जा रहा हूँ फिर इसकी रजत भी आएगी। जो मैं पढ़ने के लिए बताऊंगा वो भी तो कुरान ही है ना, फिर उसका वो बाल भी आएगा कि अगर बेसब्री का मुजाहरा करोगे। ये बात मैंने पहले वाज़ेह कर दी है। अगर आप जादू के मरीज हैं तो आपको 7वें दिन रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप हैं रजत के मरीज और रजत बहुत पुरानी है, सालों से आप वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, तो फिर सब्र के साथ, हौसले के साथ तुम्हारे रोजे 72 घंटे के भी हो सकते हैं। जादू के मरीज का रोजा 24 घंटे का औखा सौखा होके रख लेगा। आपके 72 घंटे के हैं। कहना ये चाहता हूं कि तड़पोगे, मरोगे, कभी उठोगे, कभी मायूस होगे, कभी हौसला आएगा, लेकिन हौसला पस्त नहीं करना, घबराना नहीं है, लगे रहना है। इंशाल्लाह मंजिल मिल के रहेगी। लेकिन जो बात वाज़े 2 टोक अंदाज में करना चाहता हूं वो कि तमाम दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं जो रजत के मरीज हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेगा आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए कह रहा हूं कि सब्र के साथ, हौसले के साथ चलना है। अल्लाह की रहमत के ऊपर भरोसा रखो, यकीन रखो, इंशाल्लाह एक दिन आपको मंजिल मिलकर रहेगी। अब आप अमल तवज्जो के साथ सुन लें, वो करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपके रिश्तों का मसला है, माली मसला है, सेहत का मसला है, रूहानियत का मसला है, कर्ज में जकड़े हुए वगैरह वगैरह, जो तकलीफ है उस आपकी यह मसला, उसको ज़हन में रख के अमल करें, अल्लाह पाक आपकी झोलियाँ भर देगा। सूरह तगाबुन को आपने शुरू करना है, या ये अमल आपने शुरू करना है शब्बे जुमा को, यानी जुमेरात का दिन होगा और रात होगी जुमे की। जुमेरात का दिन होगा और रात किसकी होगी? जुमे की। उसको कहा जाता है शब्बे जुमा। शब्बे जुमा को आप सूरह तगाबुन पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले आपने जो शराइत पूरी करनी है वो आप ज़हन में रख लें, वो सुन लें तवज्जो के साथ। आपने ये अमल करना है रात को, जिस तरह मैंने बोला शब्बे जुमा, शब का मतलब है रात को, जुमे की रात को ये अमल करना। ये अमल रात का है। ईशा की नमाज के बाद ये अमल कर लें, 10 बजे अमल कर लें, 11 बजे अमल कर लें। एक वक्त आप रख लें, मैं कोई सख्ती नहीं कर रहा, एक वक्त अपनी मर्जी का आप जो है मुतय्यन कर लें। फिर आपने उसी वक्त के ऊपर ये अमल करना है। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि कभी ईशा के फौरन बाद हो रहा है, कभी 4 घंटे बाद हो रहा है, इस तरह नहीं। इलाज को इलाज समझ के आपने करना है। ईशा की नमाज के बाद मिसाल के तौर पे आप वक्त रख लेते हैं, तो आपने ईशा की नमाज पढ़ी, अपने साथ आपने पानी भी रख लेना है और साथ कुरान मजीद भी रख लेना है। 2 चीज़ें हो गई, पानी और कुरान मजीद। तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप खुशबू लगा लें जो आपके पास दस्तयाब है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना लगाएं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब आपने अमल शुरू करना है। अमल शुरू करने से पहले जो शर्त पूरी करनी है वो है हसार करना। अब सूरह तगाबुन के लिए मजबूत खिजरी अमल के हसार की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये अमल, तो जो है, अगर आप ये अमल बाद नमाज इशा करते हैं फौरन, तो इशा के बाद आप क्या पढ़ेंगे? खिजरी अमल, जो हमने 5 नमाजों के बाद पढ़ने, हर नमाज के बाद पढ़ना है। अगर आप इशा की नमाज पढ़कर फारग हो गए, अब आपने खिजरी अमल पढ़ लिया है, अपना हसार कर लिया, घर बार का, बच्चों का रूहानी हसार कर लिया, अब आपको हसार की ज़रूरत भी नहीं है। अब आपको हसार की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपने इशा की नमाज पढ़ ली, खिजरी अमल पढ़ लिया, अब अमल आप रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे करने लगे हैं, अब दोबारा हसार करना पड़ेगा। तो ये आप सामने रखें अपने बात। अगर हसार का वक्त बचाना है तो फिर फौरन इशा की नमाज पढ़े, अपना मामूल का हसार करें, यानी 5 अमाल जो करने हैं वो करें, उसके बाद साथ ही वजीफा शुरू हो जाएगा, फिर दोबारा हसार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पे आपने इशा की नमाज पढ़ी, उसके बाद किया आपने खिजरी अमल, यानी हसार किया। हसार करके अब आप 7 मरतबा पढ़ेंगे सूरह तगाबुन। अव्वल व आखिर 7 बार दुरूद इब्राहीम पढ़ने, अपने मकसद को ज़हन में रखकर। जब आप पढ़ लें, अपने हाथों पे फूंक मार के ऊपर से नीचे अपना उतारा करना है, ताकि जादू है, रजत के असरात है, नेगेटिव एनर्जी है, जिन्नाती असरात है, वो सब कुछ जल जाए।
पानी जो आपने पास रखा होगा, एक गिलास या बोतल रखी होगी या थर्मस रखा हुआ है, उसमें आपने फूंक मार देनी है, दम कर देना है, वो पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना है। अगर तो आप माली तंगदस्ती हैं, कारोबार के मसाइल चल रहे हैं, ये पानी कारोबार की जगह पे जाके छिड़के। अगर घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं तो ये पानी घर में छिड़के। अगर घर में लोग बीमार हैं, ये पानी उन्हें पिलाएं। अगर आप वजीफा करने वाले हैं, खुद बीमार हैं, जिस तरह मिसिस अल्ताफ है, वो कहती मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो ये पानी खुद भी आपने थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना है। अगर कोई दवाई खाते हैं तो इसी पानी के साथ वो दवाई भी आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक हो गया। 7 बार सूरत तगाबुन पढ़नी है। अगर आप हाफिज़े कुरान हैं तो आपका वक्त लगेगा 16 से 17 मिनट। अगर तो आप हाफिज़े कुरान, 18 आयात है, छोटी सी सूरह मुबारक है। अगर आप नाजरा पढ़े हुए हैं, आप हाफिज़े कुरान नहीं हैं, तो आपका जो कुल वक्त 7 बार सूरत तगाबुन पढ़ने पे लगेगा वो आधा घंटा लगेगा। जिनकी रफ्तार बहुत कम है उनको 35 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन 5-7 दिन के बाद आपकी जब रफ्तार बढ़ जाएगी, फिर आप में और हाफिज़ में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। हाफिज़ 2 से 2.5 मिनट में सूरत तगाबुन पढ़ लेता है। ठीक हो गया। तो 7 बार पढ़नी है, तो यूं आपके 16-17 मिनट कुल जो है वो लगेंगे। ये 16-17 मिनट का वजीफा है। आगे बात बड़ी आपके लिए हौसला अफजा है। पहले दिन यानी शब्बे जुमा को आपके लगेंगे 16, 17, 18 या 20 मिनट कह लो, खत्म। 20 मिनट में अल्लाह आपके मसले हल कर दे, घर बैठे, ना किसी को पैसा देना पड़े, ना इज्जत पामाल हो, ना परेशानियां, ना झिड़कें, ना जलालत। अल्लाह वालों, और अल्लाह से क्या लेना है। आज आपने शब्बे जुमा है, आज आपने अमल कर लिया, खलास। अब आप किसी से कलाम किए बगैर सो जाना है आपने। यानी सूरत तगाबुन का अमल करके फिर आपने दुनिया की बातें नहीं करनी, ताकि ये जो वजीफा है इसके जो असरात हैं, अनवार व तजल्लियात हैं, वो आपकी रूह के अंदर सरायत करें। आप सो गए, आगे दिन कौन सा आ जाएगा? शब्बे जुमा आ गया, आज आगे आ जाएगी शब्बे हफ्ता, अगली रात आ जाएगी ना शब्बे हफ्ता। शब्बे जुमा को हमने सूरत तगाबुन कितनी बार पढ़ी है? 7 बार। शब्बे हफ्ता को पढ़ेंगे 6 बार। मैंने क्या कहा था, आगे बात बड़ी मजे की आएगी, हौसला अफजा। शब्बे इतवार को पढ़ेंगे 5 बार, शब्बे सोमवार को पढ़ेंगे 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, और शब्बे जुमेरात को 1 बार। यानी वजीफा 15-20 मिनट से शुरू होगा और 2.5 मिनट पे आ जाएगा। जुमेरात को आपने सूरत तगाबुन सिर्फ 1 बार पढ़नी है। शराइत वही रहेंगी, वही हसार, वही वक्त, वही सब कुछ वही रहेगा, पढ़नी है 1 बार। अब आगे फिर शब्बे जुमा आ गया, शब्बे जुमा को आज फिर 7 बार पढ़ेंगे। फिर पूरा हफ्ता टेपर ऑफ होती जाएगी, यानी नीचे आप आते जाएंगे। हर रोज 1 दाना कम, 1 दाना कम, 1 दाना कम। 7 दिन है, 7वें दिन पे आप 1 पर आ जाएंगे। फिर शब्बे जुमा आ जाएगा, फिर 7 बार पढ़ेंगे, फिर सारा हफ्ता उसको टेपर ऑफ करते जाएंगे। तो यूं 7 हफ्ते का ये अमल है। 7 हफ्ते आपने ये अमल बाकायदगी के साथ करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितनी भी रजत है सख्त वो भी टूटेगी। जादू तो आप भागता देखो, 2-3 दिन में आपको वो डरावने ख्वाब आएंगे, वो हलचल मचेगी कि आप बयान नहीं कर सकते। लेकिन ना वो मुझे बताने की जरूरत है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मैंने पहले आपको बता दिया। अफरा तफरी मच जाएगी, 2-3 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा, और 7वें दिन तो काट शुरू हो जानी है अल्लाह के हुक्म से। आप ख्वाब में वो तमाशे देखेंगे कि आप परेशान हो जाए, लेकिन परेशान नहीं होना, बल्कि आपने खुश होना है कि गोलियां सीधी जाकर लग रही हैं। लेकिन ये मामला रजत वालों के साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये जादू की बात हो रही है। उनके साथ ये मामला 2 हफ्ते बाद भी हो सकता है, 6 हफ्ते बाद भी हो सकता है, 7 हफ्ते बाद भी हो सकता है, 8 हफ्ते बाद भी हो सकता है, 3 महीने के बाद भी जाके हो सकता है। मैंने 2-3 बार बात ये दोहराई है, उसका इन्हिसार है कि रजत कितनी पुरानी है। इसलिए ये वाले जो लोग हैं मिसिस अल्ताफ मेमन वाले, यानी वज़ाइफ पढ़ने वाले, ये इधर ना आए, हजरत साहब फुलान को तो बहुत जल्द नफा हो गया है। इस तरह आपके अंदर मायूसी आएगी, फिर मुझे इतना तफसील से जवाब देने की क्या जरूरत पड़ी है अगर आपने परेशान होना है, मायूसी होना है। अब 7 हफ्ते आपने सूरह तगाबुन का अमल कर लिया।
हर शब जुमा को आप 7 बार पढ़ेंगे, फिर टेपर ऑफ करते जाएंगे। शब जुमेरात आएगी तो 1 बार, फिर शब जुमा आएगा तो दोबारा 7 बार, फिर टेपर ऑफ, फिर आप पीक पे जाएंगे, फिर टेपर ऑफ। यूं 7 जुमेरातें या 7 हफ्ते ये अमल आप करेंगे। 7 सदका खैरात जो अल्लाह ने तौफीक दी है वो आपका चलता रहेगा। अगर तो हैं आप जादू के मरीज, आप सेहत के लिए कर रहे थे, घर में लड़ाई झगड़े थे उनके लिए कर रहे थे, या जो मकसद था आपका, चाहे बच्चों का रिश्ता था, चाहे लड़ाई झगड़े थे, चाहे सेहत थी, चाहे माली तंगदस्ती, जिस मकसद के लिए आप कर रहे थे, चाहे आपकी वज़ाइफ की हिस्ट्री थी या आपकी वज़ाइफ की हिस्ट्री नहीं थी, अगर तो आपको 7 हफ्तों में रिजल्ट मिल गया तो आपने 7 हफ्तों के बाद ये अमल बंद कर देना है। ये अमल बंद कर देना। देखें, ये आज 7वां हफ्ता शुरू हो गया। शब जुमा है, 7 बार, 6 बार, 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, ऐसे ही होगा ना। आज 7 हफ्ते मुकम्मल हो गए। अब ये जो 1 बार है ये सारी जिंदगी चलेगा। ये 1 बार जो है सूरत तगाबुन, अब ये सारी जिंदगी चलेगी। लेकिन शराइ सारी खत्म हो जाएंगी। सुबह पढ़ो, रात को पढ़ो, और आपको जुबानी, क्योंकि ये याद हो चुकी कि 7 हफ्ते जब आप बार बार पढ़ेंगे ये जुबानी याद हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप किसी नमाज में पढ़ ली, एक रुकू एक रकत में, दूसरा रुकू दूसरी रकत में पढ़ लिया। नमाज के अंदर पढ़ोगे, अजर व सवाब भी बढ़ेगा और ये अमल भी आपके हाथ में रहेगा, और इस अमल के असर बाद भी आपके ऊपर नहीं आएगा, रजत भी नहीं आएगी। जिंदगी में अल्लाह ना करे कोई परेशानी आजमाइश दोबारा आ जाती है, मेरे से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके पे दोबारा आप ये 7 हफ्तों के लिए अमल कर लोगे, अल्लाह उस मुसीबत से आपको निकाल देगा। जिंदगी में जितनी बार मर्जी ये करते रहो। अब आप आमिल बन गए, ये अमल आपका हो गया। जब आपको कामयाबी मिल जाए 7 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद, अगली बात और बड़ी अहम बात जो लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ़ी करते हैं, मिसाल के तौर पे ये सारी बातें सुन के आपने अमल शुरू कर लिया, आपको कामयाबी मिल गई, जिस मकसद के लिए ये अमल आप कर रहे थे, आपको तीसरे हफ्ते कामयाबी मिल गई। अब अमलियात का ये असूल है कि अमल 7 हफ्ते चलना है। अब अवाम क्या करती है कि हफ्ते में काम हो गया, साडा काम हो गया, हूँ वजीफा पढ़ के करना है। तो मतलबी नहीं बनना, नकली नहीं बनना, असली बनना है, खानदानी बनना है। जो अमल शुरू किया है ये 7 हफ्ते का अमल है। काम हो ना हो, आपने अमल अब 7 हफ्ते पूरा करना है। काम पहले हफ्ते हो जाए, दूसरे हो जाए, तीसरे हो जाए, अमल 7 हफ्ते चलेगा। 7 हफ्ते के बाद मैंने बताया खैरात करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, और फिर 1 बार सारी जिंदगी पढ़ते रहेंगे। ये तो हो गए जादू के मरीज, या वो खुश नसीब जो रजत के मरीज हैं लेकिन उनकी रजत थी कम दर्जे की, तो अल्लाह ने उनको निकाल दिया। अब वो लोग जो 7 हफ्ते से पढ़ रहे हैं लेकिन उनका काम नहीं हो रहा, वो हसूले मकसद तक पढ़ते रहेंगे। हसूले मकसद तक, जब तक उनका मकसद हासिल नहीं हो जाता, बच्चों की शादियां नहीं हो जाती, घर में बीमारियां खत्म नहीं हो जाती, माली तंगदस्ती खत्म नहीं हो जाती, या जिस मकसद के लिए वो पढ़ रहे हैं वो मकसद हासिल नहीं हो जाता, वो मकसद 2 महीने बाद हासिल हो, 6 महीने बाद हासिल हो, साल बाद हासिल हो, मेरे से बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, इजाजत की जरूरत नहीं है। आपने मकसद के हसूल तक इसी तरतीब से ये अमल करते रहना है। जिस दिन आपका मकसद हासिल हो जाए, आपने ये अमल बंद कर देना है। उसके बाद सारी जिंदगी 1 बार पढ़ते रहना है। चाहे नमाज के अंदर 1 बार पढ़ ले, चाहे नमाज के बाहर आप 1 बार पढ़ लें। अगली बात खवातीन के लिए बड़ी है। खवातीन ये अमल शुरू करें जिस दिन उन्होंने तहारत अख्तियार करनी है, यानी आज अयाम ख़त्म हुए, आज वो नहाई हैं, पाक साफ हुई हैं, आज वो ये अमल शुरू कर लें, ताकि जो अगले 3 हफ्ते हैं वो उनको पाक साफ मिल जाएंगे। तो बड़ी अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि 3 हफ्ते तक जब वो सूरत तगाबुन पढ़ती रहेंगी उन्हें जुबानी याद हो जाएगी, जुबानी याद हो जाएगी। क्यों? अगर वो जुबानी याद नहीं कर पाएंगी तो जो अगला हफ्ता उनका आएगा अयाम वाला, उसमें ये अमल बंद कर देंगी तो फिर क़यामत तक इलाज नहीं होना। जो मरीज 3 हफ्ते दवाई खाए, 1 हफ्ता दवाई ना खाए, उसको आराम आ सकता है, उसको आराम आ सकता है। हमारे पीरों ने, पेशवाओं ने ऐसा हमारा बेड़ा गर्क किया है कि वज़ाइफ के बारे में ख़वातीन के ज़हनों में ये बात बिठा दी है कि भाई वजीफ़ा अयाम के दिन आगे ना नमाज पढ़नी है, ना जिक्र है, ना कुरान है, ना फुलां है, ना फुलां, कुछ भी नहीं करना। घर वाले घर नहीं तो सानू किसी का डर नहीं, साड़ी जी छुट्टी हैगी है,
भाई कुरान से मना किया गया है, नमाज से मना किया गया है, अल्लाह के जिक्र से मना नहीं किया गया, रुकिया से मना नहीं किया गया, और आदो वज़ाइफ से मना नहीं किया गया। जिन दिनों में आपके अयाम शुरू हो जाए, आपने इसको वजीफे की नीयत से पढ़ना है, रुकिया की नीयत से पढ़ना है, इलाज की नीयत से पढ़ना है, जिक्र की नीयत से पढ़ना है, तिलावत की नीयत से ना पढ़ें। क्यों? हम कर भी इलाज रहे हैं, तो इलाज के लिए होता है रुकिया, दम। तो दम आप हालते बीमारी में, हालते नापाकी में या बगैर वजू के कर भी सकते हैं और करवा भी सकते हैं। इसके ऊपर मजीद तफसीली बयानात सुनने हो तो हमारे शाफिया सोशल मीडिया के तलाश चैनल पे, आरजू चैनल पे, कमली चैनल पे, अर्श चैनल पे, चारों पांचों चैनल्स के ऊपर बयानात पढ़े हैं, वो आप सुन लें ताकि शरीयत का मसला और मजीद आपको वाज़े हो जाए। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि ख़वातीन ये अमल शुरू करें जिस दिन वो पाक हो जाए, ताकि 3 हफ्ते उनको पाकी के मिल जाएं और सूरत तगाबुन उनको ज़ुबानी याद हो जाए। 18 आयात है, एक आयत रोज़ाना याद करेंगे, 18 दिन में सूरत तगाबुन जो है वो याद हो जाएगी। फिर जिन दिनों में अयाम शुरू हो जाए तो क्या फ़ायदा होगा कि उनको कुरान हाथ में लेना नहीं पड़ेगा, ना वो ले सकती हैं। अब ज़ुबानी याद होगी, वो ज़ुबानी जो है वो 7 बार पढ़नी, ना तस्बीह की ज़रूरत है, उंगलियों के ऊपर 7 बार पढ़ लेंगी। एक बार दूसरा फिर नफ़ा ये होगा कि आइंदा कुरान सामने रख के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद सूरत तगाबुन याद हो जाए, फिर आपकी रफ्तार भी बढ़ जाएगी और आप कुरान सामने रखे बगैर ज़ुबानी पढ़ लें, क्योंकि आप हाफिज़ बन जाएंगे। तो ये मेरा मशवरा है। बाकी जैसे ख़वातीन को आसानी हो वो कर सकती हैं, लेकिन अगर आप आज ये अमल शुरू कर लेती हैं, 1 हफ्ते के बाद अयाम शुरू हो जाते हैं, फिर अयाम के अंदर आप कुरान मजीद खोल कर नहीं पढ़ सकती। अब अमल रुक जाएगा, अमल रुक जाएगा, फिर उसकी वो तासीर नहीं आएगी। इसलिए मैंने आपको मशवरा दिया है, आज आपने बयान सुना है तो बेताबी के साथ आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज हज़रत साहब ने बताया हम आज ही शुरू कर लें। जहाँ इतना वक्त ज़ाया हुआ है, थोड़ा सा हौसला कर लें। ये जो 5 आमाल मैंने बताए हैं ये फ़ौरन शुरू कर लें और ये सूरत तगाबुन वाला छोड़ दें। जिस दिन आप पाक हो जाएं फिर आपने सूरत तगाबुन शुरू कर देनी। इसी तरह ख़वातीन का ये है कि जिन दिनों में नमाज नहीं पढ़नी, खिज़री अमल का हसार नहीं छोड़ना, वो रुकिया है, वो दम है, वो चलता रहेगा, सिर्फ नमाज नहीं आपने पढ़नी। इसी तरह जब सूरत तगाबुन आपको ज़ुबानी याद हो जाएगी, वो भी रुकिया है, वो भी दम है, वो भी इलाज है, फिर आपका अमल नहीं टूटेगा। तो ये हदायत इसलिए मैंने वो दे दी ताकि किसी को ब्लंडर ना हो, किसी से गलती जो है वो ना हो। 7 हफ्ते का ये अमल है, 7 हफ्ते आप मुसलसल करेंगे। पहले दिन आप 7 बार पढ़ेंगे, फिर हर आने वाले दिन में एक एक कम करते जाएंगे। फिर जब शब जुमा आ जाएगा दोबारा 7 बार, फिर टेपर ऑफ करेंगे, फिर 7 बार, फिर टेपर ऑफ करेंगे। यूं 7 हफ्ते आप पढ़ेंगे। अगर 7 हफ्तों में आपका काम हो जाता है या 7 हफ्तों से पहले काम हो जाता है, अमल आपने 7 हफ्ते तक करना है। जब 7 हफ्ते मुकम्मल हो जाए, काम आपका हो गया है, फिर आपने एक बार सारी जिंदगी पढ़ते रहना है, एक बार। इसी तरह किसी का जादू का इलाज था, उसको हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद अफाका हो गया, तो अमल बंद नहीं करना, अमल 7 हफ्ते मुसलसल चलेगा। ठीक हो गया। अब वो हजरात जिनका काम तो हुआ लेकिन थोड़ा हुआ, अफाका तो हुआ लेकिन थोड़ा हुआ, उनके लिए मैंने कह दिया है कि आपके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है। आपका काम 2 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, 2 साल बाद हो, आपने अपने मकसद के हसूल तक ये अमल करते रहना है। मकसद के हसूल तक अमल करते रहना है। हाँ, अगली बात यह है कि इस सारे अमल के दौरान कोई गमी खुशी आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, आपको कहीं आना जाना पड़ जाता है, तो आप जहां जाएं वहां जाके हसार करके ये अमल कर सकते। उससे अगली बात, अगर आपके घर की तरतीब ये नहीं बन रही, आपके अमल की तरतीब ये नहीं बन रही कि आप ये कहते हैं जी इशा की नमाज तो मैं मस्जिद में पढ़ लेता हूँ, या ख़वातीन कहती हैं मैं नमाज पढ़ लेती हूँ, उसके बाद घर के काम होते हैं, मैं वजीफ़ा नहीं कर सकती, वजीफ़ा मैं सोने से पहले करूँगी। मसाइल होते हैं लोगों से। अगर आपने नमाज इशा की पढ़ ली, खिजरी अमल जो है वो आपने साथ ही पढ़ लेना है, वो तो हो गया ख़त्म। अब आप वजीफ़ा करने लगे हैं रात को 12 बजे, तो मैंने शुरू में क्या कहा था कि अब आपको दोबारा हसार करना पड़ेगा, लेकिन अब आपको खिजरी अमल के हसार की ज़रूरत नहीं है। अब आप हमारे अर्श चैनल पे जाएं, वहाँ हसार नबवी अलैहिस्सलाम है, छोटा सा हसार है, 1 मिनट 1.5 मिनट का, वो हसार करके आप ये अमल कर सकते हैं।
وہ میں نے آپ کو آسانی دی ہے کہ اگر آپ عشاء کے ساتھ کریں گے تو آپ کو حصار نبوی الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خضری عمل الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو معمول کے مطابق آپ خضری عمل پڑھا ہوا ہے، حصار کیا، اسی حصار کے ساتھ یہ عمل بھی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ گیپ دے دیتے ہیں پھر دوبارہ خضری عمل پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا حصار کر کے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سورت مبارکہ معتدل ہے، نہ جلالی ہے نہ جمالی ہے، تو جہاں جلالی وظائف ہوں وہاں مضبوط حصار کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے زیادہ مضبوط حصار کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ دن میں الحمدللہ آپ 5 بار پہلے ہی خضری عمل کا حصار کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ صدقہ خیرات حسب توفیق جو ہے وہ آپ دیتے رہیں گے۔ اللہ بولو جس مقصد کے لیے سورۃ تغابن کو یوں پڑھو گے اللہ پاک آپ کو رنگ دے گا، چاہے تھانہ کچہری ہے، مقدمہ ہے، قتل و غارت ہے، آپ کا زمین پہ کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ قبضہ چھڑانا ہے، پیسہ کسی نے لے لیا ہوا ہے پیسہ واپس لینا ہے، اس طرح رجت کے مریض ہیں، جادو کے مریض ہیں، رشتوں کی بندش ہے، لا علاج بیماریاں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بے روزگاری ہے، کسی طرح کا مسئلہ ہے، صرف بات رجت کی یا جادو کی نہیں ہے، کسی طرح کا زندگی کا مسئلہ ہے، اس کی نیت کر کے سورۃ تغابن آپ پڑھیں، اللہ سونا آپ کے اوپر کرم فرما دے گا۔ اسی طرح جس نے بیٹی کا رشتہ دیکھنے جانا ہے رستے میں سورۃ تغابن پڑھتے ہوئے جائیں، کیونکہ زبانی یاد ہو چکی ہوگی، یا مہمان آپ کے گھر میں آ رہے ہیں تو آپ ان کے آنے سے پہلے کم از کم ایک بار سارے گھر والے سورۃ تغابن جو ہے وہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ العزیز اگر بہتر ہوگا تو یوں اللہ رستے آسان کر دے گا، کام آپ کا بن جائے گا۔ اسی طرح آپ تجارت کے لیے جا رہے ہیں، کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، مکان دکان بیچنا خریدنا ہے، آپ سورۃ تغابن پڑھتے ہوئے جائیں، یعنی جس کام کے لیے بھی جا رہے ہیں پھر سورۃ تغابن پڑھتے ہوئے جائیں، یا گھر سے پڑھ کر نکلیں، جس کام کے لیے جائیں گے اللہ خیر فرما دے گا، مٹی کو بھی ہاتھ ڈالو گے اللہ سونا بنا دے گا۔ یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ اس عمل کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ عمل میں نے آپ کو دے دیا، اجازت بھی دے دی، طریقہ کار بھی بتا دیا، اس سے متعلقہ کوئی بھی سوال ہوگا تو وہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے یا تلاش چینل کی کمیونٹی کے ذریعے آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں۔ سورۃ تغابن کے اوپر پہلے بھی ایک بیان ہو چکا ہے، وہ تلاش چینل پہ پبلک ہو چکا ہے، 2-3 بیانات مزید بھی اس کے اوپر آئیں گے، تو ان کے اندر آپ کے سوالات یا کوئی اشکال یا کوئی اعتراض ہوگا تو اس کو اسی بیان کا حصہ بنا لیں گے۔ آپ تمام حضرات کو اجازت ہے، دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں پریشان حال ہیں، جادو کی وجہ سے پریشان ہیں، وظائف پڑھ کے اجڑے ہوئے ہیں، رجت کے مارے ہوئے ہیں، نظر بد کے مارے ہوئے ہیں، کسی طرح کی بھی نیگیٹو انرجی سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک سب کو صحت والی، سلامتی والی، خیر والی، برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ سب کو اجازت ہے گھر گھر میں یہ شافیہ سوشل میڈیا کے پیغام کو پہنچائیں، تاکہ یہ مکمل جو میں نے روڈ میپ دیا ہے اس کے اوپر چل کے لوگ اپنی مصیبتوں کا حل ڈھونڈ سکیں یا اپنی پریشانیوں کو ختم کر سکیں۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ہماری التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ گھروں میں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ والدین جو بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جس طرح مثل الطاف میمن ہے، اس طرح لاکھوں مائیں ہیں جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کو ڈھنگ کے جوڑ کے رشتے عطا فرمائے۔ اس طرح وہ والدین جو بچے بچیوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی اولاد کو ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ چلنے والا بنائے، ہم سب کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو کاروباری مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں، مالی تنگ دستی کا شکار ہیں، قرض کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، یا کسی سے قرض لینا ہے، قرض واپس نہیں مل رہا، کسی طرح کے بھی مالی معاملات ہیں جنہوں نے ان کی زندگی کو عذاب بنائے، وہ اللہ ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے، آسانی والے اسباب پیدا فرمائے۔ دنیا بھر میں وہ لوگ جو شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں، خانقاہ دارالشفا کے ساتھ جڑے ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہے، اللہ سب کی جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کی حفاظت فرمائے۔ وہ تمام حضرات جو خانقاہ کی مالی، بدنی، وقتی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کو ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں یا جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے ہم ان کی دعائیں رب کی بارگاہ میں پیش نہیں کر سکے، اللہ رب العزت ہم سب کو بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔